Good morning, students. So, here we are starting with this interesting topic, that is income from business and profession. We must say that it is third in a row as far as the different heads of income tax is concerned. What we have seen in the beginning is basic concepts in taxation, where we have seen all basic concepts, that what is previous year, assessment year, person, assessee, capital and revenue expenditure, capital and revenue receipt. Along with that, we have seen an important aspect, that is residential status of assessee. After that, we have seen income from salary, which is a very interesting topic, along with all perks, along with gratuity, pension, PF, allowances, and whatnot. Same way, we have seen deduction under section 16 or deductions from salary income. Next to that, we have seen income from house property, where we have seen how to calculate gross annual value. Further to that, net annual value and deduction under section 24. 24A for standard deduction, 24B for interest on borrowed capital, and then it is income or loss from house property. This is the third head of income, that is income from business and profession. And very important, section 28 to 44 are the sections which is going to look after PGBP, that is profit and gains of business and profession. Students, this is a very important topic based on entirely accounting rather. So accounting comes into picture, and when accounting comes into picture, there is nothing without debit and credit. So what is debit and credit? We need to know that. Along with that, we need to have certain points before commencing this particular topic, that is income from business and profession. So number one, in accounts, usually debit means minus and credit means plus. That is what the usual meaning as far as debit and credit is concerned. But when we prepare a profit and loss account, the ultimate aim of preparation is to find out the net profit or net loss. हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. And the same profit is chargeable to tax as far as income tax is concerned. Income tax को तो इसी में इंटरेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं. So the best well-wisher in the entire world is nothing but income tax as far as you all people are concerned, because income tax से ज़्यादा आपका कोई well-wisher नहीं है. Income tax बोलता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स उस पर मिले. That is how they are the well-wisher. Now the profit and loss account which you are preparing is prepared by two rules. Number one, debit all expenses and losses of the business, credit all incomes and gains of the business. मतलब P&L के डेबिट में आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? डेबिट में आप बताएंगे all expenses and losses of the business, and credit में आप बताएंगे all incomes and gains of the business. Now there is a small rule, there is a minute rule when you are showing all these expenses and losses and incomes and gains to the debit and credit side. The basic rule is that these expenses and losses should be of short term nature, should be of revenue nature. Now what is this? That obviously these should be incurred into the day to day activities of running the business. ये सारे जो expenses है ये आपका business run करने के लिए होने चाहिए, और वो भी short term में. For example, if you say that purchase of a car, now it is not a short term expenditure because it is a capital expenditure, because you are purchasing a car, you are creating a fixed asset for the business which may be used for next 5 years, 10 years or 15 years down the line. So this is not a revenue expenditure, students, this is a capital expenditure. But if you say that repairs of car, and that too for official use, then it comes under business. Why? Because the car is used for official purposes, repairs is done even for the same car which is used for official purposes, hence it is a business expenditure. So this is the best example to narrate what is capital expenditure and what is revenue expenditure. Similarly, purchase of a land and building, plant and machinery, furniture and fixture, all these goes under capital expenses under balance sheet asset side, whereas repairs to machinery, depreciation on machinery, driver's salary, all these are nothing but the revenue expenses, or you can say that these are the business expenses which are of short term or revenue nature, should be shown in the profit and loss account debit side. जबकि अगर capital expenditure है तो balance sheet की asset में होना चाहिए. Similarly, when we are talking about the profit and loss account credit side, then what should be shown is revenue income, that is short term income. For example, if you are owning say a coffee shop there, obviously the task is to sell coffee each and every day. So sell of coffee is your revenue receipt, क्योंकि आप रोज कॉफी बनाएंगे, रोज कॉफी बेचेंगे. So that is how it is a revenue receipt and short term receipt, because every day you need to make coffee, every day you need to sell coffee, and that is nothing but your business income. ये फिर से आपका business income हुआ. Now any gift received from your friend, any interest received on the FDs as far as business is
concerned, all these are the personal receipts and these will not be there on the profit and loss account credit side. So going on the same line, do remember that debit all expenses and losses of the business but of revenue nature. Credit all incomes and gains of the business, again of revenue nature. These should not be long term, these should not be capital expenditure or capital receipt. These cannot be shown in profit and loss account. These are rather shown on balance sheet asset side. That is what the basic nature there. तो यहाँ से याद रखिए कि हमें expenses और losses पे ध्यान देना है, income और gain पे ध्यान देना है, but those should be of revenue nature. That is what expected as far as doing all these things are concerned. तो ये सारी चीज़ें करते टाइम हमें रेवेन्यू सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस. सो लेट्स सी द फॉर्मेट, लेट्स सी फ्यू ऑफ द थिंग्स हियर. व्हाट इज गिवन? पॉइंट नंबर 2. सो एज आई टोल्ड यू, अकाउंट्स में डेबिट मीन्स माइनस, क्रेडिट मीन्स प्लस. तो डेबिट में हम बताएंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, credit is all incomes and gains of the business. Now second, it shows that the profit and loss account should ultimately show the net profit or net loss, which is authentic one on which the tax can be calculated. But if you have shown certain wrong things there, then it is going to show, then it is not going to show you the authentic financial position of the business in terms of net profit and net loss. In that case, we are supposed to prepare a revised profit and loss account. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस बता दिए जो बिजनेस से रिलेट नहीं करते, पर्सनल एक्सपेंसेस है, और आपने वो P&L के डेबिट में बता दिए, तो ऑब्वियसली इट मीन्स दैट यू हैव रॉन्गली डेबिटेड सर्टन एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेवेंट विद द बिजनेस. तो आपने ये गलती से उनको डेबिट किया. डेबिट किया मतलब क्या किया? डेबिट किया मतलब माइनस किया, क्योंकि हमने अभी देखा बेटा, डेबिट इज माइनस हियर एंड क्रेडिट इज प्लस हियर. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस रूल, क्योंकि इस पे पूरा का पूरा टॉपिक जाता है, अकाउंट्स पे पूरा का पूरा टॉपिक जाता है. सो डेबिट इज माइनस, क्रेडिट मीन्स प्लस. सो गलती से अगर माइनस किया तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा. और गलती से अगर आपने प्लस किया है, जैसे कि आपने पर्सनल इनकम्स है कुछ, आपके फादर ने गिफ्ट दिया, फ्रेंड ने गिफ्ट दिया, फादर इन लॉ ने गिफ्ट दिया, वाइफ ने गिफ्ट दिया, सो ऑल दीज आर पर्सनल गिफ्ट्स. दीज शुड नॉट कम इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. लेकिन आपने अगर उसको क्रेडिट कर दिया, मतलब आपने गलती से प्लस कर दिया, जो बिजनेस के P&L में नहीं आना चाहिए. अब गलती से प्लस किया तो रेक्टिफिकेशन में हमें उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. तो ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है व्हेन वी आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज PGBP, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. सो लेट्स सी द सेकेंड रूल. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड शो business expenses that to revenue, business related expenses that to revenue, or short term expenses on debit side of profit and loss account. Similarly, the business should show business related incomes that to revenue or short term incomes on credit side of profit and loss account. This is what the ideal thing when you are preparing a profit and loss account. लेकिन आपने अगर ये नहीं किया तो क्या हो सकता है? Then your net profit and net loss is obviously not the authentic one, not the same which is expected by the income tax authorities. However, the same doesn't happen and profit and loss account shows wrong amount of net profit and net loss. In that case, obviously the tax charge will be wrong again. So what is to be done when certain mistakes are happening? Let's see. Corporate or business tax need to be charged on the profits of the business or correct profits of the business. So if the profit is underestimated due to following mistakes, the same need to be corrected. So अगर आपका profit ही underestimated है, या फिर underestimated बोलिए या overestimated, both are the mistakes there, and that too we need to consider it is unintentional. Same similar example, let's say that the business turnover is 300 crores, my dear. आपका business का turnover है 300 करोड़ और आपने बताया 30 करोड़, और जब इनकम टैक्स की क्यूरी आई तो आपने बोला कि बस एक जीरो मिस हो गया, 300 करोड़ का 30 करोड़ हो गया. लेकिन आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक है, बिकॉज यू हैव अंडर एस्टिमेटेड योर सेल्स और टर्नओवर बाय 270 करोर्स, और फिर उसका इम्पैक्ट ऑन नेट प्रॉफिट, उसका इम्पैक्ट ऑन टैक्स एंड ऑल दोज थिंग्स दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड हियर. सो ऑल दीज मिस्टेक्स नीड टू बी करेक्टेड एज फार एज दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कंसर्न. सो देखते हैं कैसे क्या हमें मिस्टेक करेक्ट करने हैं. So let's see from point number 4 how the corrections are done. Students, one simple thing is there that you already having a profit and loss account. आपके पास already एक profit and loss account है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये profit and loss account correct नहीं है. There are certain corrections into this profit and loss account which we need to make, और वो corrections हमें करने हैं. Now these corrections are obviously in the form of either add or in the form of less.
अब ये ऐड और लेस क्यों बिकॉज व्हाट इज नॉट सपोज टू बी डेबिटेड, जो आपने डेबिट नहीं करना चाहिए था, कॉल्ड एज एक्सपेंसेस विच आर रॉन्गली डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है जो आपने नहीं बताना चाहिए P&L के डेबिट में लेकिन बता दिए। उसी तरह से इनकम विच आर पर्सनल इनकम विच नीड नॉट बी शोन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बट रॉन्गली क्रेडिटेड, मतलब जो गलती से डेबिट किया उसको हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपने वो गलती से माइनस किया है। डेबिट किया मतलब स्टूडेंट्स माइनस किया, क्रेडिट किया मतलब प्लस किया। तो जो गलती से डेबिट किया है उसको आप ऐड करो क्योंकि वो गलती से आपने माइनस किया है। जो गलती से आपने प्लस किया है दैट इज क्रेडिट किया है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल फॉर ऑल दोज आइटम्स फॉर disallowed expenses and losses and disallowed incomes and gains, or else we can call them as expenses or losses which are wrongly debited to profit and loss account, income and gains which are wrongly credited to profit and loss account. So this is what the simple funda, जो गलती से आपने डेबिट किया है उसको आप ऐड कर दो क्योंकि आपने उसको गलती से माइनस किया है। उसी तरह से गलती से जो आपने ऐड किया है दैट इज क्रेडिट किया है उसको आप अभी माइनस करो, शो इट अंडर द हेड ऑफ डिडक्ट। सो लेट्स सी द होल फॉर्मेट हियर। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर्मेट सो दैट यू कैन कम टू नो हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो पहले देखिए पॉइंट नंबर 4। सो इफ सम एक्सपेंसेस आर रॉन्गली डेबिटेड इट मीन्स सिंपली दे आर डिडक्टेड विच इज रॉन्ग। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है लेकिन आपने गलती से डेबिट कर दिए, जैसे कि डिप्रिसिएशन 20,000 रुपये का है स्टूडेंट्स लेकिन आपने बताया 2 लाख। डिप्रिसिएशन कितना है स्टूडेंट्स 20,000 लेकिन आपने बताया 2 लाख, बस एक जीरो ज़्यादा हो गया। लेकिन कितना एक्सेस डिप्रिसिएशन बताया आपने, डेबिट किया मतलब आपने गलती से माइनस किया। कितना एक्सेस माइनस किया आपने, एक्चुअल होना चाहिए 20,000, आपने बताया 2 लाख। मीन्स हाउ मच इज द एक्सेस स्टूडेंट्स 1,80,000, क्योंकि बताना चाहिए 20,000 लेकिन आपने बता दिया 2 लाख। और डेबिट किया मतलब माइनस किया। अब एक्चुअल डेबिट करना था 20,000 और आपने कर दिया 2 लाख। सो हाउ मच इज द एक्सेस अमाउंट 1,80,000. This excess amount need to be adjusted because this is not the logical amount of depreciation. तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, add back करना पड़ेगा. Same is given. So if some expenses are wrongly debited, it means that they are deducted from profit and loss account, which is a wrong thing and it need to be rectified. अगर ये rectify करना है तो as a rectification we need to add these expenses which are wrongly debited to the profit and loss account. एंड डू रिमेंबर, ऐसे अगर आपने गलती से डेबिट की है मतलब कहाँ पे है ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अवेलेबल है जो आपको दिया है क्वेश्चन में, बट दीज आर रॉन्गली डेबिटेड। ये देना नहीं चाहिए था लेकिन दे दिया, तो अब इसको आपको करेक्ट करना है तो आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। जो आपने माइनस किया है, डेबिट किया है, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा अंडर द हेड ऑफ डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस बट दीज आर रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये बोल के आपको इसको ऐड में लेना पड़ेगा। सो दैट इज हेड नंबर 1। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, सिंपल आंसर है दिस यू विल फाइंड आउट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी है कि ये कैसे ढूंढेंगे हम, तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है दिस यू नीड टू फाउंड आउट into the given profit and loss account, and there are certain rules. Rule number 1, such expenses should be of business related, such expenses should be of short term or revenue nature, then only they can be debited to the profit and loss account. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ये तो बिजनेस रिलेटेड नहीं है और शॉर्ट टर्म भी नहीं है, मतलब ये या तो लॉन्ग टर्म है या तो ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, मतलब ये पर्सनल है, then in that case it is a disallowed expenditure and it should be obviously added back under the head of add. So that is what the point number 1 as far as this mistake is concerned, that is disallowed expenses and losses which are wrongly debited to profit and loss account. तो ये गलती से ऑलरेडी डेबिट हो चुके हैं, अब हो चुके हैं तो इसको करेक्ट करना है और एज अ करेक्शन वी नीड टू ऐड देम बैक। सो दैट इज फर्स्ट ऐड हमें मिल गया और ये ऐड हम कहाँ पे ढूंढेंगे, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इसके लिए मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा आफ्टर डिस्कसिंग दीज 4 पॉइंट्स वेयर यू कैन फाइंड आउट
enlarge the different items which need to be either added or need to be deducted, जो भी है वो सारे हम आइटम वहां पे देखेंगे, सो वहां पे और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। नाउ जिस तरह से आपने डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट कर दिए थे, गलती से डेबिट किए मतलब माइनस कर दिए थे, उसको आपने प्लस किया। सिमिलरली देयर इज अनदर पॉइंट विच यू कैन सी अंडर पॉइंट नंबर 5। सिमिलरली इफ सम इनकम्स आर रॉन्गली क्रेडिटेड, इट मीन्स सिंपली दे आर एडेड विच इज रॉन्ग एंड शुड बी रेक्टिफाइड। जिस तरह से आपने एक्सपेंसेस गलती से डेबिट किए, कुछ इनकम आपने क्रेडिट किए, कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। इसका मतलब है वो पर्सनल इनकम है, दोज आर नॉट बिजनेस रिलेटेड इनकम, दोज आर नॉट शॉर्ट टर्म इनकम, बट स्टिल यू हैव शोन देम रॉन्गली ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। अब जब भी क्रेडिट की बात आती है तो याद रखिए क्रेडिट का मतलब क्या है स्टूडेंट? क्रेडिट मीन्स आपने उसको प्लस किया है, जो करना नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज दीज आर पर्सनल इनकम, दीज आर नॉट रिलेटेड विद बिजनेस, दीज आर नॉट शॉर्ट टर्म एंड स्टिल यू हैव शोन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर आपको इसका रेक्टिफिकेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेम इज गिवन। सिमिलरली इफ सम इनकम्स आर रॉन्गली क्रेडिटेड, इट मीन्स सिंपली दे आर added which is wrong and should be rectified. So as a rectification, these incomes should be deducted under the incomes which are wrongly credited. Remember again these are available in profit and loss account but on credit side. ऊपर expenses and losses थे तो हमें डेबिट में मिलेंगे, नीचे इनकम और गेन है वो हमें कहाँ पे मिलेंगे? क्रेडिट साइड में। सो स्टूडेंट्स क्या फर्क है? Those are expenses and losses and wrongly debited. These are income and gains which are wrongly credited. Those are also not related to business. These are also not related to business. लेकिन गलती से वो डेबिट हुए थे, गलती से माइनस हुए थे, हमने उनको प्लस किया। अब ये गलती से क्रेडिट हुए, क्रेडिट मीन्स प्लस हुए, हमने इसको माइनस कर दिया। सो वी आर डन विथ टू हेड्स, वन एड एंड अनदर लेस। और इसको ढूंढना कहाँ पे है? फॉर्मेट के हिसाब से हमें इसको ढूंढना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो इन समरी we need to check the profit and loss account which is given in the question, and we can go for all disallowed expenses and losses which are wrongly debited to the profit and loss account. Along with that, we need to find out all disallowed incomes and gains which are wrongly credited to the profit and loss account. इनको ढूंढना है, जो रॉन्गली डेबिट हो चुके हैं उनको हमें ऐड करना है, जो रॉन्गली क्रेडिट हो चुके हैं उनको हमें लेस करना है। इसका रीज़न ये है, रॉन्गली डेबिट हुआ है मतलब आपने गलती से उसको माइनस किया है, तो माइनस का अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो उसको रिवाइज करके प्लस करना पड़ेगा। और रॉन्गली क्रेडिट हुआ है मतलब रॉन्गली प्लस हुआ है, तो अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सो दैट वी कैन सी इनटू अ फॉर्मेट गिवन हियर। बट उसके साथ और दो मिस्टेक्स है, इसके बाद मैं आपको एक larger format बताऊंगा where you can find out it very easily that how to add and how to less when a profit and loss account is given, and you need to find out the correct profit and correct loss which is chargeable to income tax. तो हमें देखना है। नेक्स्ट अब हमने क्या देखा? that is disallowed expenses and losses which are wrongly debited, and then we have seen disallowed incomes and gains which are wrongly credited. Obviously these are, you can say that personal expenses and losses which are wrongly debited, जो business से related नहीं है, जो short term भी नहीं है, and that is how these are wrongly debited, और इनको हमने add कर दिया to find out the correct profit and correct loss. Similarly when we go on credit side here, जब हम क्रेडिट साइड में जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो हमें क्या मिलेगा? डिसअलाउड इनकम्स एंड गेन्स विच आर रॉन्गली क्रेडिटेड। रॉन्गली क्रेडिटेड मीन्स गलती से प्लस किया है, अब इसको माइनस करो अंडर द हेड ऑफ डिडक्ट। अब और दो चीजें बाकी है, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ, अगेन वन एड एंड अनदर लेस। नाउ व्हाट इज दिस? द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस। ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेस जो बिजनेस से रिलेट करते हैं, फिर भी आप उनको बताना भूल गए, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो बड़ा सिंपल है, तो ये आपको बतानी चाहिए। फॉर एग्जांपल बैड डेट्स, दैट इज कस्टमर आपको डुबा के जा चुका है और 50,000 का आपका नुकसान हो गया, तो ये आपके बैड डेट्स है रनिंग ईयर के, से 2022 एंड 2023 के। तो 50,000 आपको बैड डेट्स में बताने हैं, लेकिन आप भूल गए बताना भूल गए, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। आपने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन आपको बाद में याद आया कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर आपने, ये पर्टिकुलर लॉस आपने नहीं बताया, जो आपको 50,000 का लॉस हुआ है, यू हैव फॉरगॉट टू शो इट इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अभी भूल गए तो और बताना चाहिए टू फाइंड आउट रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो बताएंगे तो कहाँ बताएंगे?
अब ये एक्सपेंडिचर है, बताना चाहिए था, जो आपने बताया नहीं है. नाउ शो इट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डेबिट में बताना है मतलब ऑब्वियसली माइनस करना है. अब हम यहाँ पे पी एंड एल तो नहीं बता रहे, हम एक रिवाइज स्टेटमेंट बना रहे टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट एंड करेक्ट लॉस ऑफ द बिजनेस. तो हमें ये डेबिट करना है, जो अभी तक डेबिट हुआ नहीं है. डेबिट करना है मतलब दिस शुड कम अंडर द हेड ऑफ लेस. यस, दैट इज करेक्ट. ये लेस में आएगा. तो और लेस में हम क्या लिखेंगे? दैट इज allowed expenses and losses which are related to the business but not shown on the profit and loss account debit side. ये expenses और losses ऐसे हैं जो बताने चाहिए थे लेकिन बताए नहीं. उसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, that is bad dates. और एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको. Let's imagine that there is a depreciation but you have forgot to show it. Depreciation था वहाँ पे on a fixed asset, say land and building, plant and machinery, which is there but you have forgot to show it. So this depreciation need to be shown and show it under the head of less. That is deduct or less all expenses and losses which are related to the business but not debited to profit and loss account. तो ये सेकेंड लेस आया स्टूडेंट्स. पहला लेस क्या आया था? What is the first less? That is disallowed incomes and gains which are wrongly credited to profit and loss account. पहला हमारा लेस आया था disallowed incomes and gains which are wrongly credited to the profit and loss account. These items are already available in profit and loss account credit side. क्योंकि ये पर्सनल इनकम है जो बिजनेस के पी एंड एल में बतानी नहीं चाहिए लेकिन आपने गलती से बता दी है और ये पी एंड एल के क्रेडिट में अवेलेबल है. वहाँ से उठाओ, रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लेस में डाल दो क्योंकि आपने इसको गलती से ऐड कर दिया था. सेकेंड लेस क्या हुआ स्टूडेंट्स? अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस बट नॉट शोन ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. फॉर एग्जाम्पल बैड डेट्स, फॉर एग्जाम्पल डिप्रिशिएशन. तो ये सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आपके हैं लेकिन आप इनको बताना भूल गए थे. तो आप बता दीजिए. डेबिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया. माइनस करना चाहिए था, नहीं किया. अब कर दो. तो पहला लेस आएगा दिस वन, दैट इज डिसअलाउड इनकम्स एंड गेन्स. दूसरा आएगा अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. बट ये अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपको पी एंड एल में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये इनको बताया ही नहीं आपको. तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे स्टूडेंट्स? यू कैन फाइंड आउट दीज थिंग्स इन टू एडजस्टमेंट्स ओनली. तो ये अवेलेबल है तो एडजस्टमेंट में रहेंगे, वरना तो ये आपको मिलेंगे ही नहीं. ये मिलेंगे नहीं अगर एडजस्टमेंट में. तो ये कॉलम में पर्टिकुलर आप डैश लिख सकते हैं अंडर द हेड ऑफ अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. डिसअलाउड इनकम्स एंड गेन्स में डैश लिखने की नौबत नहीं आती बिकॉज दीज आर द आइटम्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. सो दैट इज व्हाट द नेचर देयर. नाउ नेक्स्ट, दैट इज अलाउड इनकम्स एंड गेन्स बट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऐसे कुछ बिजनेस इनकम है, जैसे बिजनेस एक्सपेंसेस लॉसेस आप भूल गए डेबिट करना, वैसे कुछ बिजनेस इनकम और गेन आप भूल गए क्रेडिट करना. सो यू कैन सी पॉइंट नंबर 7, फर्दर इनकम्स विच आर अलाउड और शॉर्ट टर्म इनकम्स but not shown on profit and loss account credit side. It means these are business income which have to be shown on profit and loss account credit side but it has been forgotten. These needs to be shown under the head allowed incomes and gains to be shown under the head add. तो ये आपने ऐड करने चाहिए थे, प्लस करने चाहिए थे, लेकिन आपने नहीं किए. क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया. तो अब कर दो रिवाइज इसमें. तो अंडर द हेड ऐड, रिमेंबर अगेन दीज आर नॉट अवेलेबल इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं मिलेंगे. तो आपको कहाँ पे मिलेंगे? ऑब्वियसली इन एडजस्टमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन. सो दैट इज व्हाट द नेचर. सो स्टूडेंट्स, हमें क्या मिला? टू फाइंड आउट रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दो चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी. एक, दो ऐड और दो लेस. अगर मैं इसको सम अप करूं तो क्या ऐड करना पड़ेगा और क्या लेस करना पड़ेगा? मैं आपके लिए यहाँ पे एक कॉलम बना चुका हूं, आप देख सकते हैं. सो समिंग अप, आई हैव मेड अ टेबल हियर. वी नीड टू प्रिपेयर अ रिवाइज फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू अराइव एट करेक्ट नेट प्रॉफिट एंड करेक्ट नेट लॉस फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स. ये हमें ढूंढना पड़ेगा. और ये कैसे मिलेगा? स्टेटमेंट शोइंग द रिवाइज नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी बिजनेस हुएवर एंड फॉर द ईयर एंडेड. तो इसमें क्या है? नंबर 1, नेट प्रॉफिट आज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट है वो लिखना है यहाँ पे. और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है? सो यू टेल मी व्हाट शुड बी रिटन. सो फर्स्ट वी नीड टू राइट डाउन हियर ऐड disallowed expenses and losses. So let's complete it together students. ये साथ में खत्म करते हैं. Add disallowed expenses and losses. And what is the explanation here? That is expenses and losses which are wrongly debited to the profit and loss account. तो ये expenses और losses, expenses and losses which are
wrongly debited to the profit and loss account, wrongly debited to profit and loss account। तो ये गलती से डेबिट हो चुके हैं, तो गलती से डेबिट हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको, अब आपने गलती से माइनस किया था, तो गलती से माइनस किया था तो उसको करेक्शन करो, और करेक्शन करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स फिर से रिपीट करता हूँ, ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ओवरऑल फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। सेकेंड ऐड क्या करेंगे, जैसे हमने अभी देखा ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, आपको मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, जो गलती से डेबिट हो गए, होने नहीं चाहिए थे। अभी क्या यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, इट इज अलाउड इनकम्स एंड गेन्स, यानी जो बिजनेस इनकम है लेकिन आप बताना भूल गए। आप पूछेंगे कि सर ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है, अगर आप डिसअलाउड भी बताते हैं तो वहाँ पे अलाउड का भी चांस तो रहेगा ही रहेगा, बियॉन्ड डाउट रहेगा। सो दिस वन इज, यू कैन से अलाउड इनकम्स एंड गेन्स हियर, allowed incomes and gains, and into bracket incomes and gains related with the business, incomes and gains related with the business, but not credited to profit and loss account। मतलब आप इसको क्रेडिट करना भूल गए, सीधी सी बात है, ऊपर की गलती हो सकती है डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की, तो अलाउड इनकम्स और गेन्स की भी गलती हो सकती है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ द नेचर इज गोइंग ऑन हियर। मैं ये क्लियर करता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी डिडक्टेड, एंड व्हाई इट शुड बी एडेड एंड व्हाई इट शुड बी डिडक्टेड। चलिए आगे चलते हैं। सो दो ऐड हमें मिल गए। क्या ऐड मिला हमें, पहला स्टूडेंट्स that is disallowed incomes and, पहला ऐड हमें क्या मिला, the first add we have got is disallowed expenses and losses, disallowed expenses and losses है पहला हमें जो मिला, मतलब जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस नहीं है फिर भी आपने डेबिट कर दिए। और दूसरा हमें मिला अलाउड इनकम्स एंड गेन्स, जो बिजनेस रिलेटेड इनकम है, शॉर्ट टर्म इनकम है, फिर भी आप क्रेडिट करना भूल गए, तो आप क्रेडिट करो, अब उसको ऐड करो। तो जो आपका नेट प्रॉफिट है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हमें ये दो चीज़ें ऐड करनी है स्टूडेंट्स। जैसे दो चीज़ें हम ऐड करेंगे उसी तरह से हम दो चीज़ें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेस करेंगे। सो व्हाट इज टू बी लेस दैट, यही चीज़ें मैं रिपीट करूँगा फॉर्मेट के हिसाब से, बस थोड़ा बहुत मुझे चेंज करना है। ये जो बी है, बी को उठा लेता हूं मैं, और बी को उठा के क्या करूंगा, ये देखिए व्हाट आई एम सपोज टू डू फॉर बी। वैसे तो ए बी दोनों उठा सकता हूं मैं, बट एक एक उठा के मैं आपको समझाता हूं कि हाउ इट इज़ टू बी कंप्लीटेड देयर। चलिए पहला मैंने क्या लिया, लेस में पहला मैं लेता हूं अभी, व्हाट शुड बी टेकन हियर। ये देखिए लेस में फर्स्ट व्हाट आई शुड राइट डाउन, लेस फर्स्ट इज व्हाट, दैट इज लेस में पहला क्या आएगा, बस एक मिनट दे दीजिए मुझे टू करेक्ट दिस फॉर्मेट। लेस में पहला क्या आएगा, पहला लेस आएगा मेरा डिसअलाउड, हेड चेंज नहीं कर रहा, देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने अलाउड के बजाय डिसअलाउड कर दिया, डिसअलाउड इनकम्स और गेन्स कर दिया, और मैं बोल रहा हूं अभी इनकम्स एंड गेन्स विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, विच आर नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस, बट what, wrongly credited to profit and loss account। my task is done here। तो बस मैंने ऊपर अलाउड इनकम एंड गेन था स्टूडेंट्स, उसका मैंने डिसअलाउड इनकम एंड गेन कर दिया। ये आपने गलती से क्रेडिट किए हैं, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने इसको बता दिया। दो दीज आर पर्सनल इनकम्स, दो दीज आर द इनकम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, बट स्टिल यू हैव शोन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स,
लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको गलती से क्रेडिट कर दिया है। गलती से क्रेडिट करना मतलब प्लस करना, प्लस करना मतलब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो माइनस करेंगे। सो दैट इज हाउ इट इज कमिंग अंडर लेस डिसअलाउड इनकम्स एंड गेन्स। सो इनकम एंड गेन्स विच आर नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम लेस करेंगे। और उसी तरह से हम अब बी पे चले जाएंगे। ये डिसअलाउड इनकम्स एंड गेन्स था, अब यहाँ पे आएंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको ले लेंगे एज इट इज। अब हमें कौन सा लेस करना है दूसरा, ये आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए फॉर्मेट के हिसाब से व्हाट शुड बी लेस हियर, फॉर्मेट के हिसाब से लेस क्या होना चाहिए, ये देखिए क्या चेंजेस करूँ स्टूडेंट्स। जैसे मैंने ऊपर अलाउड को डिसअलाउ कर दिया था, अभी डिसअलाउड है, लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, इसको करूँगा अलाउड। एंड व्हाट आई शुड चेंज इज अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर, अब मुझे यहाँ पे वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ऐसी चीज़ है कि ऐसे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो बिजनेस के है, जो बिजनेस ने बताने चाहिए लेकिन बिजनेस ने बताए नहीं है, मतलब ये एडजस्टमेंट में मिलेगा आपको, लाइक बैड डेट्स, लाइक डिप्रिशिएशन, जो बताना चाहिए लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं है। तो दो ऐड और दो लेस का ये पूरा खेल है स्टूडेंट्स। एंड देन फाइनली ये दो ऐड दो लेस करेंगे तो आपको मिलेगा आपका रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा ऊपर लेता हूँ ताकि ये एक साथ टेबल हमें देखने मिले। ये देखिए व्हाट वी कैन सी हियर इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ whatever business is there, and then for the year ended, say 31st March 2023, 31st March 2022, whatever, and then we should start with net profit as per profit and loss account। इसमें दो ऐड है और दो लेस हमें करने, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहला ऐड हम क्या करेंगे, पहला ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो इसमें क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस, मतलब ये पर्सनल एक्सपेंसेस है या तो ये कैपिटल एक्सपेंसेस है जो गलती से आपने डेबिट में डाल दिए। डेबिट में डाल दिए मतलब आपने गलती से इसको माइनस कर दिया, तो अब रेक्टिफिकेशन करना है तो इसीलिए इसको ऐड में डाला है। तो दैट इज हाउ ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस विच आर रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबकि सेकेंड ऐड है अलाउड इनकम्स एंड गेन्स, यानी ऐसे इनकम और गेन जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बताने चाहिए है लेकिन नहीं बताया आपने, आप भूल गए बताना। जैसे कि मैंने टर्नओवर का एग्जांपल बोला, आपको टर्नओवर है 300 करोड़ लेकिन आपने बताया 30 करोड़ और बाद में एक्सप्लेनेशन दिया कि बस एक जीरो की गलती हो गई। सो अभी ये करेक्ट तो करना पड़ेगा और उसके लिए 270 करोड़ आपको ऐड करने पड़ेंगे। दैट इज हाउ इट कम्स अंडर अलाउड इनकम्स एंड गेन्स। और इसमें क्या आएगा, इनकम्स एंड गेन्स रिलेटेड विद द बिजनेस बट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दैट इज व्हाट द सेकंड नेचर। सो ऐसा इनकम और गेन जो बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन आपने P&L के क्रेडिट में इसको बताया नहीं है। वेराज लेस पे चलते हैं और दो लेस देखते हैं। दो ऐड हमने देख लिए। और एक बात स्टूडेंट्स, पहला ऐड अवेलेबल रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, दैट इज डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा ऐड आपको P&L के डेबिट में नहीं मिलेगा। ये अगर मिलना है तो आपको कहाँ पे मिलेगा, yes it will be found out into the adjustments, it won't be available into the items there. Why? Because these are the incomes and gains which have been forgotten to be shown on profit and loss account credit side। ये भूल चुके हैं, आपने नहीं बताया, P&L के क्रेडिट में बताना चाहिए, अब बता दीजिए, मतलब ये एडजस्टमेंट में अवेलेबल रहेगा। उसी तरह से लेस चले जाएंगे तो पहला आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में डिसअलाउड इनकम्स एंड गेन्स, पर्सनल इनकम है, बिजनेस का इनकम नहीं है, जो आपने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बता दिया अंडर डिसअलाउड इनकम्स एंड गेन्स विच आर नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे इनकम जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है लेकिन आपने P&L के क्रेडिट में बता दिए, तो दैट इज हाउ इट विल बी कमिंग अंडर डिसअलाउड इनकम्स एंड गेन्स। एंड नेक्स्ट सेकेंड इज अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर से डिसअलाउड इनकम्स और गेन्स आपको P&L के क्रेडिट में मिलेंगे क्योंकि गलती से प्लस हुए, वहाँ से उठाओ और उनको लेस करो। और दूसरा जो लेस है वो है अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर से आपको ये P&L में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा एडजस्टमेंट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस बट
haven't been debited to the profit and loss account debit side. ये आपने P&L के डेबिट में बताया नहीं है, तो अब बता दो. डेबिट करना है मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा अंडर द हेड ऑफ अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. दिस इज द ब्यूटी ऑफ PGBP स्टूडेंट्स, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिकॉज दिस कम्स विथ अकाउंट्स प्लस टैक्स. तो ये बड़ा आसान है, बस ऐड दो करने हैं, दो लेस करने हैं. एक ऐड आपको मिलेगा P&L के डेबिट में, दूसरा ऐड आपको मिलेगा एडजस्टमेंट में. उसी तरह से एक लेस मिलेगा P&L के क्रेडिट में और दूसरा लेस मिलेगा आपको P&L के एडजस्टमेंट्स में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. टेक्निकल जरूर है बट इंटरेस्टिंग है. दैट इज एक ऐड एक लेस. एज फार एज द फर्स्ट इज थिंग इज कंसर्न, दो ऐड आपको मिलेंगे, दो लेस मिलेंगे और उसके हेड्स अलग अलग है जो आप देख सकते हैं इन द टेबल विच इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहला ऐड क्या करना है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जबकि दूसरा ऐड क्या करना है, अलाउड इनकम्स एंड गेन्स, दैट इज इनकम्स एंड गेन्स विच आर रिलेवेंट विद द बिजनेस बट फॉरगॉट टू बी शोन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. भूल गए तो अब बता दीजिए, और ये अवेलेबल रहेंगे एडजस्टमेंट में. जबकि डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपको मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. लेस पे चलते हैं. लेस पे एक चीज फिर से मिलेगी आपको P&L की क्रेडिट में, दूसरी चीज मिलेगी एडजस्टमेंट में. पहला लेस है आपका डिसअलाउड इनकम्स एंड गेन्स विच आर रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आप देख सकते हैं. इनकम्स एंड गेन्स विच आर नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस बट स्टिल रॉन्गली क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिलेटेड नहीं है फिर भी आपने क्रेडिट कर दिया, इसलिए वहां से उठाओ, ऐड में डाल दो, लेस में डाल दो सॉरी. और दूसरा लेस जो है दैट इज अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट इज बिजनेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर रॉन्गली डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये देख सकते हैं आप, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इनको डेबिट कर दो. और ये दो ऐड दो लेस करने के बाद फिर आपका आएगा चार्जेबल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस which is authentic and genuine on which tax can be charged. तो आपको जरा सा लार्जर फॉर्मेट बता देता हूँ आपको. So this is how it is in summary there students. Section 28 to 43 is going to see the PGBP, that is profit and gains of business and profession. आप बोलेंगे business क्या होता है? Any activity which is carried out for the aim of earning profit or any activity which is running for gaining profit out of it is called as nothing but the business. And what is profession? Profession is nothing but attainment of specific skills for performing an activity. Say open heart surgery cannot be done by me or you because we are related with commerce. We are not doctors, that too not surgeons at the same time. Obviously we cannot do it because for that certain skills need to be acquired there. So doctors, lawyers, chartered accountants, these are professionals. Whereas business, any business can be done, speculative, non-speculative, n number of businesses are there where the sole motive is earning profit there. Larger format आपको बता देता हूँ. I hope you got this particular thing here. So this is the larger format there, students, must be understood very properly. So income from business and profession, it is going to be seen under section 28 to 44. क्या क्या देखना है हमें बस रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना है. जो उन्होंने दिया है वो गलत है. तो शुरुआत करेंगे, ये देखिए नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ. आप देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट बिजनेस इनकम स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज और कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर. फॉर द AY है ये, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ. दिस वे इट इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको P&L में दिया है, अवेलेबल है, और उसमें क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है. अब इन्होंने थोड़ा लार्जर पिक्चर दिया है फॉर्मेट में कि क्या ऐड करेंगे और किस तरह से. जैसे मैंने आपको बोला था, पहला ऐड क्या है स्टूडेंट्स, डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. Expenses and losses which are not related with the business and still wrongly debited to profit and loss account. इसमें क्या क्या मिलेगा देखिए. सबसे पहले add disallowed expenses, amount wrongly debited to profit and loss account और amount debited to profit and loss account but not allowed. या तो wrongly debit बोलिए या तो बता दिया लेकिन not allowed ऐसा बोल दीजिए, दोनों एक ही है. अब इसमें कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है that these are never allowed. ये कुछ चीज़ें इसमें allowed ही नहीं है. जैसे आप देख सकते हैं, what is the first thing here as far as this particular head is concerned, all provisions, reserves, income tax, wealth tax. You must be thinking income tax allowed नहीं है. We charge corporate tax my dear on business income, not income tax. Income tax is charged on individual income, personal income. ये income tax के लिए chargeable होता है. business income पे business tax लगता है या corporate tax लगता है, which is usually 30%. So that is what, इसीलिए
इनकम टैक्स डिसअलाउड है, वेल्थ टैक्स डिसअलाउड है, क्योंकि ये वेल्थ पे लगता है। बिजनेस के एवरी ईयर इनकम पे वेल्थ थोड़ी लगेगी और या वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा। सो दैट इज व्हाट द रीजन। एट द सेम टाइम डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रोविजन या रिजर्व्स अलाउड नहीं है। यू मे बी सेइंग व्हाई। प्रोविजन यू कैन क्रिएट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू से दैट मुझे लगता है कि मेरा 5 करोड़ रुपया नहीं आएगा। ये लगता है का कोई मतलब नहीं है। अगर वो नहीं आया देन ओनली इट इज़ अ लॉस। ऐसा लगता है वो नहीं बोल के आपको तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। एंड इन केस यू डोंट हैव प्रॉफिट देयर वोंट बी एनी टैक्सेस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देन that is the problem. So here only realistic things are considered. Provisions are not allowed. Any kind of reserves are created out of net profit. Reserves आप कहाँ से बनाते हैं? नेट प्रॉफिट से बनाते हैं। लेकिन रिजर्व आप क्यों बना रहे हैं? फॉर अ कॉन्टिजेंसी विच मे और मे नॉट अराइज इन द फ्यूचर। इसलिए इनकम टैक्स बोलता है ये दोनों चीज़ें अलाउड नहीं है। भले आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में बताया, आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। एनी काइंड ऑफ प्रोविजन इज कॉल्ड एज reserve for bad debts, reserve for doubtful debts, reserve for bad and doubtful debts. That is a famous term in accounting, RBD, RDD and RBDD. याद रखिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। मतलब किसी भी वर्ड में अगर रिजर्व आया या प्रोविजन आया तो सीधा उठाना है, डिसअलाउ बोल के लेना है और उसको एड बैक करना है टू कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिए स्टूडेंट्स, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व इज नॉट एट ऑल अलाउड। Income tax is not allowed because it is on personal income. Wealth tax is not allowed because it is charged on wealth of the business, on wealth of a person. Business का तो wealth का कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, person के wealth का चांस है। That is how all these are disallowed. That is all types of provisions. किसी भी word में provision आता है तो disallowed, किसी भी word में reserve आता है तो disallowed. Like RDD, RBD, provision for depreciation. Do remember students in accounting, बैड डेट्स आर डिफरेंट, आरडीडी इज डिफरेंट। बैड डेट्स मतलब पक्का लॉस है, कस्टमर डुबा के जा चुका है। आरडीडी मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, मतलब आपको लगता है कि ये डुबाएगा, डुबाया क्या ये पता नहीं है। सो दैट इज हाउ बैड डेट्स इज अलाउड बट आरडीडी इज नॉट अलाउड। सेम वे डिप्रिसिएशन इज अलाउड बट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड। व्हाई? बिकॉज डिप्रिसिएशन इज अगेन you can say that it is charged on the concerned fixed asset. Provision मतलब आप सोच रहे कि इतना रहेगा, again it is not allowed. So depreciation and bad debts are allowed, but provision for depreciation, provision for bad debts, provision for doubtful debts, provision for bad and doubtful debts are not at all allowed. These are disallowed expenses and losses. If charged on profit and loss account debit side, reverse them and add them back. इसलिए ये ऐड करेंगे क्या? All types of reserves, all types of provisions, any kind of income tax, any kind of wealth tax, because these are personal, these are not related with business. Along with that, any capital expenses except on scientific research. अब कैपिटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सारे कैपिटल एक्सपेंसेस है। परचेस ऑफ कार, मोटर कार, बाइक, ये सारे कैपिटल एक्सपेंसेस है, ये अलाउड नहीं है। कौन सा अलाउड है? अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो ये अलाउड है अंडर रेवेन्यू, और यहाँ पे आप बता सकते हैं, इसलिए वो दिया है। उसका एक क्लॉज है दैट विल सी फर्दर। एज ऑफ नाउ डू रिमेंबर दैट एनी काइंड ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड हेंस डिसअलाउड। क्यों? क्योंकि हमारा पहला रूल है कि यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंसेस हमें बताने, शॉर्ट टर्म बताने। ये तो कैपिटल हो गया, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, इसलिए हमें यहाँ पे इसको बताना नहीं है। सो ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट ऑन साइंटिफिक रिसर्च नीड नॉट बी शोन। कोई कैपिटल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है तो ये डिसअलाउड होगा और ये एड बैक होगा, जैसे कि परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेस ऑफ मोटर कार, ऑल दीज नीड टू बी एडेड बैक. These cannot be shown on profit and loss account debit side. These are anyways items on balance sheet asset side, we all know. Number 3, all capital losses. जैसे कि आपने कार बेच दी, प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, बेचने पे लॉस हुआ, अगर कैपिटल लॉस ही, अगर आपको कैपिटल असेट परचेस की वाला अलाउ नहीं है तो उसका लॉस भी अलाउड नहीं रहेगा, ना प्रॉफिट अलाउ रहेगा, बिकॉज दीज आर नॉट रिलेटेड विथ शॉर्ट टर्म. एट द सेम टाइम दीज आर नॉट रिलेटेड विथ रेवेन्यू रिलेटेड एक्टिविटीज़. ये तो कैपिटल एक्टिविटी हो गई कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची, प्लांट एंड मशीनरी बेची, कार बेची, तो ये कैपिटल नेचर का हो गया. सो दैट इज हाउ इट इज नॉट अलाउड. सो ऑल कैपिटल लॉसेस आर डिसअलाउड, शुड बी एडेड बैक इफ दीज आर रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. किसी तरह का चैरिटी एंड डोनेशन भी अलाउड नहीं है except specified in the rules in the annexure, or you can say that in the sections of PGBP, that is profit and gains of business and profession. Along with that, all expenses relating to other heads of income, जैसे कि salary related expenses है, house property related है, capital gains related है, other sources related है. Now those are separate heads. वहाँ का एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्यों आया बिजनेस में, हेंस इट इज डिसअलाउड. गलती से आपने डेबिट में बता दिया, रिवर्स कीजिए और उसको एड बैक कीजिए. उसी के साथ ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस, that is
You can say that household expenses, medical treatment of owner, all these are personal expenses, because business entity concept says that owner and business are two separate legal entities in the eyes of law. इसलिए जो कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर करेंगे वो पर्सनल बुक्स में बताना ना चाहिए आपने, ना कि बिजनेस बुक्स में. उसी के साथ एनी डिप्रिशिएशन इफ रॉन्गली डेबिटेड, जैसे मैंने बोला डिप्रिशिएशन 20,000 का है, आपने 2 लाख बताया, तो एक्सेस कितना हुआ, ज़्यादा कितना बताया, 2 लाख माइनस 20,000, 180 रॉन्गली डेबिट हो चुका है, उसको एड बैक कीजिए. गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट इफ इट इज इन अ फॉर्म ऑफ नॉन एडवर्टाइजमेंट, अगर एडवर्टाइजमेंट बोल के है बिजनेस का तो अलाउड है, नॉन एडवर्टाइजमेंट डिसअलाउड है, एड बैक करना है. उसी के साथ एनी टाइप ऑफ फाइन और पेनाल्टी, किसी भी तरह का फाइन और पेनाल्टी है तो वो भी आपके लिए डिसअलाउड रहेगा, क्योंकि आपने गलती की इसलिए आपको फाइन और पेनाल्टी लगी. आप गलती नहीं करते तो फाइन और पेनाल्टी भी नहीं लगती. तो इनकम टैक्स बोलता है यू हैव डन मिस्टेक सो यू हैव टू पे फॉर इट and you cannot claim deduction for the same, hence it is a disallowed expenditure and should be added back. So किसी भी तरह का फाइन और पेनाल्टी भी आपको एड बैक करना पड़ेगा. उसी तरह से losses from earlier years are not allowed to carry forward here as far as this particular thing is concerned. यहाँ पे अलाउड नहीं है, P&L में सेट ऑफ कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग. एनी अदर एक्सपेंडिचर विच इज नॉट इनकर्ड अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजंस और प्रोविजंस ऑफ लॉ और विच इज द बियॉन्ड एडमिसिबल लिमिट्स, और कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपको अलाउड नहीं है और ये एडमिसिबल लिमिट के ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड बैक करनी पड़ेगी. तो हमने क्या क्या ऐड बैक किया स्टूडेंट्स? ऑल टाइप्स ऑफ प्रोविजंस, रीजर्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, along with that any type of charity and donation, non-advertisement gifts and presents, along with that any types of fine and penalty, all these are again disallowed and should be added back. उसी के साथ any type of capital expenses, any type of capital losses like loss on sale of land and building, loss on sale of plant and machinery, purchase of land and building, purchase of plant and machinery, all these are disallowed except कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च. उसी तरह से किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपेंडिचर, चैरिटी एंड डोनेशन, ऑल दीज आर डिसअलाउड. एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अदर हेड्स ऑफ इनकम लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, ये भी अलाउड नहीं है. तो ये सारे ऐड में आएंगे. एक अच्छा सा फॉर्मेट दिया है. अब ऐड में दूसरा है अमाउंट नॉट क्रेडिटेड दो टैक्सेबल अंडर दिस हेड, दैट इज चार्जेबल इनकम ऑफ बिजनेस बट नॉट शोन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. जो हम बोलते थे डीम्ड इनकम है, डीम्ड प्रॉफिट है बिजनेस का, लेकिन आपने P&L के क्रेडिट में नहीं बताया. क्रेडिट में नहीं बताया मतलब ऐड नहीं किया, तो अभी ऐड करो अंडर द हेड ऑफ ऐड बताओ. जैसे मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बोला स्टूडेंट्स, टर्नओवर बिजनेस का 300 करोड़ था, आपने गलती से 30 करोड़ बता दिया, तो ये अंडर एस्टिमेटेड हो गया बाय 270 करोड़. तो ये 270 करोड़ आप यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको. क्यों? क्योंकि दिस इज रेक्टिफिकेशन ऑफ योर मिस्टेक. That is the income which is related with the business but not shown on profit and loss account credit side. इसका रीज़न क्या है पता नहीं, लेकिन आप बताना भूल गए, 1 0 आपने काट दिया, वॉट एवर रीज़न, लेकिन आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. लेकिन याद रखिए ऊपर दिए वाले सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपको मिले थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ये आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में नहीं मिलेगा. ये आपको मिलेगा एडजस्टमेंट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में. तो एक मिलेगा P&L के डेबिट में, दूसरा मिलेगा एडजस्टमेंट में. उसी तरह से लेस में भी एक मिलेगा P&L के क्रेडिट में और दूसरा मिलेगा एडजस्टमेंट में. तो लेस पे आते हैं, तो ऐड के दोनों हो गए स्टूडेंट्स. नाउ फर्स्ट लेस, एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सीक्वेंस उन्होंने नीचे ऊपर किया है, दैट इज ओके. अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो आपने बतानी चाहिए P&L के डेबिट में लेकिन नहीं बताए, तो अभी बता दो. जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया, अलाउड डेप्रिशिएशन नंबर 1, capital expenditure on scientific research which is allowed but not shown, capital expenditure in family planning to the extent of 1/5 only for company assessee. तो फैमिली प्लानिंग के लिए अगर एक्सपेंडिचर है तो ये अलाउड है 1/5 तो भी. एक्सपेंसेस ऑफ अर्लियर ईयर्स बट डिसअलाउड देन बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट. पहले साल के एक्सपेंसेस है लेकिन तब आपने पे नहीं किए थे, तब डिसअलाउ हुए. अभी आप पे करेंगे तो अभी अलाउड है क्योंकि आपने पे कर दिया, इसीलिए इसको यहाँ पे स्थान मिल सकता है. नेक्स्ट, एक्चुअल बैड डेट्स विच आर नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कस्टमर डुबा के जा चुका है, आप बताना भूल गए, आप बता दीजिए. डिफरेंस ड्यू टू अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. वैसे स्टॉक कहाँ पे बताते हैं आप अगर देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक आप बताते हैं डेबिट साइड में, राइट. तो डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए था. लेट्स से फॉर एग्जांपल इट शुड हैव बीन 10 लाख. 10 लाख का ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए था, आपने गलती से बता दिया 5 लाख. मतलब आपने 5 लाख उसको कम माइनस किया, राइट, क्योंकि एक्चुअल 10 लाख आपने डेबिट करना चाहिए था, मतलब 10 लाख माइनस करना चाहिए था. टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट.
तो आपने ओपनिंग स्टॉक 10 के बजाय 5 बता दिया, 5 कम बता दिया, 5 कम बता दिया मतलब 5 माइनस कम किया और 5 माइनस कर दो, बता दो लेस के अंडर। लेस के अंडर आप बताएंगे अंडर अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इफ इट इज अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेस में बताना पड़ेगा, एंड दिस शुड कम अंडर अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरह से नेक्स्ट आइटम उन्होंने दिया एनी अदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ, लेकिन जो आपने बताया नहीं है। एंड लास्ट, लेस इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, मतलब दीज आर डिसअलाउड इनकम्स एंड गेन्स, मतलब ये पर्सनल इनकम है जो वैसे ही आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बताने नहीं चाहिए थे, लेकिन बता दिए। अब बता दिए गलती से तो क्रेडिट किया मतलब प्लस किया, गलती से प्लस किया तो अभी माइनस करना है। ऐसे क्या क्या आइटम है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट। आप बोलेंगे बिजनेस सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट नहीं ले सकता, बिजनेस वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इट्स मनी एंड गेट मल्टीपल रिटर्न्स आउट ऑफ इट। ये एफडी सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट लेने के लिए बिजनेस नहीं बनाया है, तो ये पर्सनल इनकम है, हेंस इट इज डिसअलाउड एंड शुड बी डिडक्टेड एज इट इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ऑब्वियसली P&L की क्रेडिट में मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको उठाना है और इसको लेस करना है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। रेंटल इनकम बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड विद बिजनेस, ये हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गया। डिविडेंड, बैंक इंटरेस्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, बिजनेस ये चीज़ें करते नहीं बैठेगा एब्सोल्युटली। कैपिटल गेन्स इज लॉन्ग टर्म, इट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म, क्योंकि हमें P&L के क्रेडिट में बताना है तो शॉर्ट टर्म इनकम होना चाहिए, रेवेन्यू इनकम होना चाहिए, रेवेन्यू रिसीट होनी चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस होनी चाहिए। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इटसेल्फ इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो उसका रिफंड भी पर्सनल इनकम हो गया, ये बिजनेस में नहीं आना चाहिए, हेंस इट इज देयर। बैड डेट्स रिकवर्ड डिसअलाउड अर्लियर, इसका मतलब क्या है, पहले आपने बैड डेट्स बताए, से फॉर एग्जांपल इन द अर्लियर ईयर 50,000 के बैड डेट्स बताया, बेटा आपने इनकम टैक्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने डेबिट में बताया, उन्होंने बोल दिया कि हम अलाउ नहीं करेंगे, आप निकाल दो, तो आपने निकाल दिया। तो आपने एक्सपेंडिचर बताया, क्या बताया था, लेकिन इनकम टैक्स ने अलाउ नहीं किया, इसलिए आपने निकाल दिया, मतलब आपने लॉस नहीं बताया। आपकी चाहत थी लेकिन इनकम टैक्स ने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसलिए डेबिट से आइटम आपने उठा लिया, लॉस उठा लिया आपने, वहाँ पे बताया नहीं बिकॉज इनकम टैक्स रिजेक्टेड इट, मतलब आपने माइनस किया, क्या आपने माइनस ही नहीं किया बिकॉज इट वॉज डिसअलाउड, ये डिसअलाउड था इसलिए आपने उसको माइनस ही नहीं किया। अब वो रिकवर हो चुके हैं, तो बैड डेट्स रिकवर्ड डिसअलाउड अर्लियर, अब पैसा वापस आ चुका है और आपने इसको बता दिया P&L के क्रेडिट में। पहले P&L के डेबिट में ही नहीं बताया तो आप P&L के क्रेडिट में क्यों बता रहे हो। पहले उन्होंने लॉस बोल के एक्सेप्ट नहीं किया, अभी आपने इनकम बोल के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट हैज़ बीन अलाउड बाय देम एज टू शो लॉस। नाउ यू नीड नॉट शो इट एज इनकम व्हेन इट इज़ रिकवर्ड। अब कस्टमर वापस आ गया, पैसे दिए आपको, तो आप इनकम बोल के मत बताओ, क्यों, क्योंकि तब उन्होंने डिनाई किया आपको लॉस बताने के लिए, अब आपने इनकम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल में भी हम आगे देखेंगे। Agricultural receipt need not be shown, life insurance maturity need not be shown as it is personal, withdrawal from PPF again personal not need to be shown, gifts from relative ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, disallowed incomes and gains are nothing but the incomes and gains which are not related with the business but still wrongly credited to the profit and loss account। इसको गलती से क्रेडिट किया है, P&L के क्रेडिट में अवेलेबल है, उठाओ और इसको माइनस करो। और दूसरा, allowed expenses and losses but not debited to the profit and loss account। तो लेस में दो चीज़ें हैं, एक मिलेगी P&L की क्रेडिट में जो डिसअलाउड इनकम एंड गेन है, बताना नहीं चाहिए था लेकिन आपने बता दिया, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा उठा के। और दूसरा है अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो P&L के डेबिट में आना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आया है, तो अब इसको बता दो आप और इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ला सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। सो ये इसका पूरा फॉर्मेट हो गया, आप देख सकते हैं, इट इज़ a wide format here. So again, starting with net profit as per profit and loss account, add disallowed expenses and losses, amount debited to profit and loss account but not allowed or wrongly debited, उसमें क्या क्या है हमने देखा। सेकेंड ऐड था हमारा allowed incomes and gains, that is income and gains which are related with the business but not shown on profit and loss account credit side, ये एडजस्टमेंट में मिलेगा। disallowed expenses and losses आपको मिलेंगे P&L के डेबिट में, अलाउड इनकम्स एंड गेन्स आपको मिलेंगे एडजस्टमेंट में। तो ये दोनों ऐड हो गए। नीचे दोनों लेस देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला लेस है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट में मिलेंगे फिर से, तो एडजस्टमेंट में अगर दिया है तो ले लो और यहाँ पे लेस करो
और दूसरा लेस हमें मिलता है, दैट इज डिसअलाउड इनकम्स एंड गेन्स विच आर रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं उसमें। इनकम्स टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, मतलब ये डिसअलाउड इनकम्स एंड गेन्स है जो बताने नहीं चाहिए थे, पर्सनल इनकम है लेकिन आपने बता दिए, तो आप इसको माइनस करो। और फाइनली दो ऐड दो लेस करके आपको मिलेगा यहाँ पे taxable profit from business and profession. So that is how it is going on. So as all in all, entire topic depends on plus and minus. Debit means minus, credit means plus. गलती से आपने माइनस किया तो उसको प्लस कर दो, गलती से प्लस किया तो उसको माइनस कर दो। एट द सेम टाइम बताना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, नहीं किया तो उसको डेबिट करो मतलब माइनस करो। बताना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया तो अब उसको प्लस करो अंडर द हेड ऑफ अलाउड इनकम्स एंड गेन्स। इस तरह से इसका फॉर्मेट जाता है। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है नोट्स में, और ये इसका छोटा सा फॉर्मेट है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दो ऐड और दो लेस। तो स्टूडेंट्स, विद दिस पर्टिकुलर टेबल एंड विद दिस पर्टिकुलर visuals, we are finishing this particular lecture on the basics of PGBP, that is profit and gains of business and profession. Next lecture we'll meet for the sums, solved sums on this one. Till then, thank you and have a wonderful day ahead. Bye bye.